ओके, सो 7th एग्जाम्पल मैंने होमवर्क में दिया था हो गया होगा, किसी ने मुझे क्वेरी नहीं की है। ओके, नंबर 8 is evaluate the following limits. Okay, the first one is limit x tends to 2 pi sin x upon x minus 2 pi. Okay, so now we have the formula which is limit x tends to 0 sin x upon x is equals to 1. Okay, but here we have sin x tends to 2 limit x tends to 2 pi sin x divided by x minus 2 pi. तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो we'll take x minus 2 pi is equals to any theta. Okay, so whenever we have x tends to 2 pi, okay, x equals to अगर 2 pi रखेंगे हम तो क्या मिलेगा, 2 pi minus 2 pi is equals to 0. So this will give us theta tends to 0. समझ में आया? अगर x equals to 2 pi रखेंगे तो 2 pi minus 2 pi will give us 0 and this will become theta is equals to 0. Okay, so for x equals to 2 pi, theta equals to 0. So we can write that whenever we have x tending to 2 pi, we can write that theta tending to 0. Okay, तो ये हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, now x equals to क्या हो जाएगा, x equals to 2 pi plus theta. Okay, ये हम लिख सकते हैं 2 pi plus theta. So now the limit will become, so therefore we can write that limit theta tends to 0 sin x equals to क्या है, 2 pi plus theta, तो sin 2 pi plus theta divided by x minus 2 pi, x minus 2 pi is equals to theta. Okay, so now what, back to the trigonometry. 2 pi मतलब यहाँ पे होता है ये, this one is 0 as well as 2 pi. So now 2 pi plus theta, 2 pi plus theta मतलब first quadrant. Okay, and in first quadrant all are positive और 2 pi plus है मतलब x axis के साथ है, x axis के साथ है, तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो which is equals to limit theta tends to 0 sin theta डिवाइड बाई थीटा. अब देखो x की जगह पर अगर हम थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा, तो इसके इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1. सो आवर आंसर इज 1 फॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 pi sin x अपॉन x minus 2 pi. समझ में आया, कोई डाउट? डाउट है, बोल. थीटा इक्वल टू 0 पे लिखे थे एमआर बराबर. हां मां, हां, we suppose that x minus 2 pi is equals to theta, right? બે વસ્તુ સપોઝ થાય, એક તો અહીંયા થી અને એક ડિનોમિનેટર માં. તમને બેમાંથી જેમાં સારું લાગે કે જ્યાંથી ઈઝી થતું હોય ત્યાંથી તમે સપોઝ કરો. બટ here we have both the things are same. Okay, for x tending to 2 pi as well as x minus 2 pi. So we'll assume that x minus 2 pi. Okay, तो मतलब दोनों साइड यहाँ पे क्या है, x tends to 2 pi है, मतलब हमने क्या किया, दोनों साइड x को 2 pi सबट्रैक्ट करते हैं, दोनों साइड को जैसे हम लेस देन और ग्रेटर देन में करते हैं वैसे ही दोनों साइड हम 2 pi जो है वो सबट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा, x minus 2 pi tends to 2 pi minus 2 pi, ऐसा लिख सकते हैं. Right? Now we have supposed that x minus 2 pi is equals to theta. So put the value, क्या मिलेगा, x minus 2 pi equals to theta. So theta tends to 2 pi minus 2 pi is equals to 0. So now this will give us that x tending to 2 pi, then we have theta tending to 0. समझ में आया? हाँ. अब कोई डाउट? Anyone else? No. किसी और को डाउट है? No, right? Okay. So next example number 2. Which is limit x tends to 0 tan x into 1 minus cos 2x divided by x cube. Okay, what we have is limit x tends to 0. Now we can rewrite this as tan x divided by x into 1 minus cos 2x divided by x square. ऐसा लिख सकते हैं, x into x square is x cube and tan x into 1 minus cos 2x, right? Which is equals to, अब
हमें लिमिट की प्रॉपर्टी पता है, क्या होगा, दोनों को हम अलग अलग लिमिट दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं वी हैव रिटन दैट लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x is equals to limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x, ये हमने लिखा हुआ है पहले, राइट? तो हम यही करेंगे, लिमिट x tends to 0 tan x upon x into limit x tends to 0 1 minus cos 2x upon x square. अब बोलो व्हाट इज 1 minus cos 2x? ट्रिग्नोमेट्री याद है ना? व्हाट इज 1 minus cos 2x? 2 cos square. क्या लास्ट लेक्चर में हमने किया, अब फिर से ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार लिमिट रख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x is equals to 1, we know that. नाउ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 व्हाट इज 1 minus cos 2x? लास्ट लेक्चर में ही किया है हमने, व्हाट इज 1 minus cos 2x? 2 cos square 2x, नो सॉरी 2 cos square x नहीं, 2 sin square x, क्यों भूल रहे हो? लास्ट लेक्चर में तो किया है हमने, मैंने पूरा समझाया था ना आपको। cos 2x is equals to cos square x minus sin square x. Now put cos square x is equals to 1 minus sin square x. The 1 minus sin square x minus sin square x will give us 2 sin square x. Okay? अब ये 2 square sin square x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और cos 2x यहाँ पे आएगा, तो क्या मिलेगा, 1 minus cos 2x is equals to 2 sin square x. Yes or no? ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया है पूरा कंप्लीट, तो ये सब याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूला है वो कुछ भी भूलना नहीं है। टी को हमने इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट किया था कि उसके कोई भी फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला सभी में आएंगे। क्या कैसे करोगे आप लोग सॉल्व? ना तो 12th होगा ना इंजीनियरिंग होगा इसके बिना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करोगे अगर ये फॉर्मूलाज नहीं आते? ये तो 1 minus cos 2x is equals to 2 sin square x divided by x square. ओके, तो जैसे हमने लास्ट में किया था, ये 2 आगे आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, sin x डिवाइड बाय x होल स्क्वायर। ये एग्जांपल पहले हो चुका है, क्या होगा, 2 अंदर 2 और लिमिट जो है वो फंक्शन के अंदर चला जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, किसी को आई थिंक उत्सव को क्वेरी थी क्या? ओके, तो कैसे होता है देखो, क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ g ऑफ x, ऐसा था, हमने इसकी ये प्रॉपर्टी की हुई है, which is equals to limit x tends to a सॉरी f ऑफ लिमिट x tends to a g ऑफ x होता है, ये प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है, राइट? अब ये कैसे होता है, तो सपोज f ऑफ x इज इक्वल्स टू बोला गया है x स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन x, ऐसा है हमारे पास। ओके, तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा? सबसे पहले g ऑफ x क्या है हमारे पास, तो f ऑफ g ऑफ x इज sin x अपॉन x, ये होता है, राइट? अब f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, और x की जगह पे हमारे पास क्या है, sin x अपॉन x, तो इसको हम लिखेंगे sin x अपॉन x होल स्क्वायर, राइट? ये तो आता है ना कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, कि वो भी नहीं आता? यस और नो? मेरे को अभी समझो तो आज चलो चेक। सी f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ g ऑफ x। ओके, अब g ऑफ x जो है वो हमारे पास है sin x अपॉन x, ओके, एंड f ऑफ x हमारे पास है x स्क्वायर। ओके, तो अब sin x अपॉन x जो है इसको हम ले लेते हैं सपोज t। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल्स टू t। ओके, तो f ऑफ t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। यस मैम। ओके, और हमारे पास क्या है, f ऑफ g ऑफ x, अगर g ऑफ x हमने t लिया है तो f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ t। हाँ, ओके, तो f ऑफ t मतलब f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू t स्क्वायर है। अब अगर t की वैल्यू हम रखते हैं तो t क्या है हमारे पास, sin x अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा, sin x अपॉन x होल स्क्वायर, और ये किसके लिए हमें मिला, f ऑफ
g ऑफ x। अब समझ में आया? हाँ मैम। ओके, तो अब ये है हमारे पास। अब इसको लिमिट के अंदर ले जाओ। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू f बाहर और लिमिट अंदर जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ओके, तो अब वही फंक्शन जो अभी हमने किया था वो f क्या है? फंक्शन है x स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। तो f ऑफ g ऑफ x क्या है? sin x अपॉन x होल स्क्वायर। हाँ मैम। ओके, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, स्क्वायर बाहर आ गया, जो फंक्शन f है बाकी अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ओके, और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की हमारे पास वैल्यू है, क्या है? 1। ओके, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। सो आवर आंसर इज 2 into 1 which is 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x into 1 minus cos x डिवाइड by x cube which is equals to 2। अब समझ में आया? किसी को डाउट क्लास में? किसी को भी? एनीवन? नहीं है ना? ओके। अच्छा, देवेन को भी क्वेरी थी, सॉल्व कर ही देते हैं साथ में। देवेन, योर क्वेरी वाज व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट? देवेन है यहाँ पे क्लास में? यस, ओके। यस मैम। हाँ, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है विच इज x एंड y। ओके, क्यों इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास एक्सिस है x एंड y। ओके, x y एंड z भी हम बोल सकते हैं, x y z आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, x और y। क्यों? क्योंकि हम दिख रहे हैं ये हमारी x और y एक्सिस है जो 2 डायमेंशन में है। ओके, अब पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये हम स्ट्रेट लाइन मतलब एक्सिस के ऊपर लेते हैं। अब जैसे कि ये यूनिट सर्कल होता है, सर्कल ठीक से नहीं बना लेकिन ये यूनिट सर्कल है, कि ये जो यूनिट सर्कल है अब यहाँ पे जो भी होता है ना वो लाइन में होता है। ओके, हम क्या लेते हैं? y इक्वल्स टू x, तो ये पूरी एक लाइन हो गई, या फिर कोई एक कर्व हो गया, जो कुछ भी होता है सब लाइन में या फिर कर्व में होता है, राइट? हम इसको ऐसे ही मेजर करते हैं लाइन से, x एक्सिस y एक्सिस ऐसे। लेकिन जब भी हम कुछ चीजें एंगल से मेजर करते हैं, ओके, ये हमारा रेडियस है, दिस वन इज अवर रेडियस r। ओके, यहाँ तक का सर्कल बना है तो उसकी रेडियस तो होगी, वो हो जाएगा r। और ये जो है ये हमारा थीटा होगा। ओके, लेकिन ये तो रेडियस ही है ना, जैसे यहाँ पे बोला ये सर्कल है तो ये रेडियस होगा, तो जी हाँ ये भी हमारा रेडियस ही है, लेकिन थीटा कौन सा है? दिस वन इज थीटा। ओके, अभी मैं आपको 3 डायमेंशन में तो नहीं समझा सकती हूँ लेकिन ये यहाँ से ये जो रेडियस है वो ऐसे ऐसे करके जाएगी। ओके, जैसे ही हम रेडियस बढ़ाएंगे तो ऐसे ऐसे उसका थीटा जो है एंगल वो बढ़ता जाएगा, ये एक एंगल में बढ़ रहा है, राइट? ये जो है वो एक एंगल में सरक रहा है यहाँ से ऐसे करके। ओके, ये आर पॉइंट है, उसको हम अगर चेंज करते हैं तो ये जो अगर चेंज होगा तो वो ऐसे एंगल थीटा में चेंज होगा। ओके, बट यहाँ पे जो चेंज होता है वो ऐसे ही लाइन में चेंज होता है, y इक्वल्स टू x है। ओके, अब अगर हम लेंगे कि x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, ये सब जो चेंज होगा वो क्या होगा? x इक्वल्स टू 1 कहाँ पे आएगा? x इक्वल्स टू 1 ये लाइन होगी, x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे होगा, x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे होगा, ऐसे ही y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू ऐसे होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 क्या है? ये सर्कल पूरा। ओके, r इक्वल्स टू 2 क्या होगा? रेडियस 2 का सर्कल। r इक्वल्स टू 3 क्या होगा? रेडियस 3 का सर्कल। ओके, वैसे अगर मैंने थीटा लिया, थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0 क्या होगी? हमारी पूरी एक्स एक्सिस। ओके, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा? y एक्सिस। ओके, तो ये जो r और थीटा के बीच का रिलेशन है उसको हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो r एंड थीटा आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, और उसको अगर हमें कार्टेशियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो वी हैव वन फॉर्मूला व्हिच इज x is equals to r cos theta and y equals to r sin theta. This is universally accepted. x equals to r cos theta होगा और y equals to r sin theta होगा। लेकिन यूनिट सर्कल अगर हम लेते हैं तो ऑलवेज वी हैव दैट x equals to cos theta and y equals to sin theta। ओके, इसके लिए तुम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स देख सकते हो, इसके अंदर मैंने डीप में इसको समझाया हुआ है। r equals to 1 ले लेंगे तो वी हैव दैट दिस वन। ओके, अब समझ में आया?
ओके, Yes, ma'am. कोई क्वेरी है अभी? देवेन? नो। ओके, सो बैक टू दी एग्जाम्पल्स. कौन सा है? नंबर 3. विच इज लिमिट एक्स टेंस टू 0. ये आप लोग खुद करो और आंसर बोलोगे मुझे. लिमिट एक्स टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स. अगर नहीं आ रहा है तो पूछो, लेकिन ट्राई करो एक बार. आगे आंसर. मैम 1 आता है क्या आंसर? आंसर 1. हाँ. एक मिनट. हाँ, यस 1. तो हम 8th में करते करते 10th में चले गए. कोई नहीं, सेकंड और थर्ड हमने 10th का कर दिया है. सेकंड भी, फर्स्ट सिर्फ हमने इसका किया. कोई बात नहीं. अभी फिर से 8th में चले जाते हैं. ओके, सो second of 8th, which is limit x tends to 0, sin 5x अपॉन sin 15x. ये तो बहुत इजी है सारे के सारे. तो यहाँ पे क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो व्हाट वी हैव इज लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x डिवाइड बाय x इनटू x अपॉन sin 15x. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए 15 और यहाँ पे हमें चाहिए 5. ओके, तो 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो विच इज मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 15. तो यहाँ पे हमें सिर्फ 5 चाहिए, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 1/3 लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x अपॉन 5x इनटू लिमिट x टेंस टू 0 15x अपॉन sin 15x. ओके,
तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1/3। समझ में आया यहाँ पे या डाउट है? आया, समझ गए। Okay, so directly we'll go for the example number 3. Which is limit x tends to 0 sin x square upon x. चलो ये आप लोग करो और बोलो आंसर क्या है। You have 1 minute. Sid, why so late? Zero, correct. Number 4. Limit x tends to 0 sin x degree divided by x. चलो ये क्या आ रहा है आंसर? x डिग्री है तो हिंट दे रही हूँ, डिग्री को हमें रेडियस में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि नीचे x है हमारे पास रेडियन। जीरो पे ही क्या है, खबर ना पड़ी। See, what we have is limit x tends to 0 sin x square upon x. Okay, अब sin x square है, x square equals to अगर थीटा ले लेते हैं, okay, तो हमें क्या चाहिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट? यस सर। ओके, अब x स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा है तो यहाँ पे हमें x से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 sin x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर चाहिए हमें, थीटा थीटा नीचे ऊपर नीचे, ओके, तो इनटू x भी होगा, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो नाउ वी कैन राइट दिस एज लिमिट, ओके, x स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा है, राइट, तो x इक्वल्स टू 0 तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, x की जगह पे 0 रखेंगे, तो व्हाट वी हैव इज लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय थीटा इनटू ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, ओके, व्हिच इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन थीटा, ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इनटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, तो sin थीटा अपॉन थीटा हो जाएगा 1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो आवर आंसर इज 0। ओके, अगर आपको ये सब थीटा नहीं लेना है और आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 sin x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू x, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास साइन के साथ डिग्री होती है वही हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए।
राइट। अब नेक्स्ट जो है साइन एक्स डिग्री, उसका क्या है आंसर? पाई बाय 180। करेक्ट। नेक्स्ट, अच्छा 5 6 7 8 कर लेना, ऐसे ही सेम ही है एग्जाम्पल, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ओके, तो वो सारे होमवर्क में नंबर 9, विच इज इवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। उसके अंदर फर्स्ट वन, लिमिट x टेंस टू 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस x इंटू 10x। चलो ये ट्राई करो, तो नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बोलो। यहाँ पे अज्यूम कर लेना 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। क्या है आंसर?
आंसर हिंट चाहिए या कर रहे हो आप लोग? ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेना। tan 3π/2 माइनस एक्स आएगा तो सॉरी 3π/2 माइनस टी, तो क्या होगा? y एक्सिस से चेंज हो रहा है, मतलब उसकी जो फंक्शन है वो चेंज होगा, tan का कॉट हो जाएगा। आंसर अभी तक नहीं आया, क्यों इतना टाइम लग रहा है? करवाऊं क्या मैं? कहीं ट्राई करो, नहीं आता आंसर। मैंने पहले ही बोला ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो फिर बोलो, मैं करवा देती हूँ। ठीक है, चलो क्या करना है? 3π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लेते हैं, राइट? तो विच गिव्स अस क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 3π/2 माइनस टी। Yes or no? Okay. Now let us take x is equals to 3π/2 in this one. Okay, x equals to 3π/2 लेंगे तो क्या मिलेगा? 3π/2 minus 3π/2 which is equals to t. Okay, तो t equals to क्या हो जाएगा? 0. मतलब whenever we have x tends to 3π/2 we'll get t tends to 0. Okay, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रखेंगे which is equals to limit t tends to 0. अब 3π/2 minus x equals to क्या है? t into 10. x equals to क्या मिला हमें? 3π/2 minus t which is equals to limit t tends to 0 t into, अब 3π/2 minus t है, 3π/2 कहाँ पे आता है? यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ये है हमारा 3π/2। 3π/2 minus t मतलब माइनस, मतलब लेफ्ट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में जाएंगे हम, तो लेफ्ट साइड में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया हमारा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल एस टी सी, मतलब 10 पॉजिटिव, तो 10 तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 3π/2 मतलब y एक्सिस के साथ है, y एक्सिस के साथ है, तो क्या करेंगे हम? फंक्शन चेंज करेंगे। तो 10 का फंक्शन चेंज होके क्या हो जाता है? कॉट, और फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये कॉट का कॉट और कॉट टी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0, ये t एज इट इज, cot t is equals to 1/10 t। ओके, तो ये तो फिर से आ गया ना, लिमिट t टेंड्स टू 0 t/10 t which is equals to 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। समझ में आया?
कोई डाउट? इजी था, सारी हिंट मैंने दे दी थी। मैंने ये भी बोल दिया था कि 3π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी ले लो, और ये भी बोला था कि वाई एक्सिस के साथ आएगा तो फंक्शन चेंज होगा। तो अब 2 स्टेप बाकी बचे थे करने के लिए। यू नीड टू वर्क आउट। नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू 10x माइनस 1 अपॉन 10x। अब बोलो इसका आंसर क्या आ रहा है फटाफट। मैम 1 आया क्या आंसर? यस 1। नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन x। बोलो यहाँ पे क्या करोगे? व्हाट इज 1 माइनस कॉस x? फिर से पूछ रही हूँ इसी लेक्चर के अंदर, व्हाट इज 1 माइनस कॉस x? बोलो अब। साइन स्क्वायर एक्स। 2 कहाँ गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स। कितने कितने सम्स हुए इसके बाद? कुछ ज्यादा नहीं हुए। ये यहाँ पे किया cos 2x, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और यहाँ पे अब हमारे पास क्या है? 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x इक्वल्स टू क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ओके, ये जो x है डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय x। ओके, अब हमारे पास क्या होना चाहिए नीचे? x स्क्वायर बाय 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो डिग्री होती है वही हमारे पास डिनोमिनेटर होना चाहिए। डिग्री क्या है? x बाय 2, तो नीचे क्या होना चाहिए? x बाय 2 स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले ये 2 नीचे जा सकता है, तो वी कैन राइट दैट साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय x बाय 2। ओके, अब x बाय 2 नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए, तो x बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय x बाय 2 होल स्क्वायर इनटू x बाय 2। तो क्या मिलेगा? दिस वन इज 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2। अब तो आपको पता ही है स्क्वायर कैसे चला जाएगा, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाय 2। अब ये जो लिमिट है x बाय 2, यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इंटू 1 इज 0, तो आंसर इज 0। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू पाई, साइन 3x अपॉन साइन 2x। ये करो, टेल मी द आंसर।
अच्छा, ये सारे सम ना आपको सेकंड्स में होने चाहिए, तभी जेडब्ल्यू अच्छे से क्लियर होगी। ये सेकंड्स में करने हैं सारे एग्जांपल्स। क्वेश्चन देख के आपको आंसर आना चाहिए। એમાં કઈ રીતે 3/2 આવે? કરો નથી આવતો? નથી આવતો અહીંયા. બહુ હવે એક્ઝામ્પલ કર્યા હો, હવે આ સારું ના કહેવાય. ઓકે, કઈ નહીં. Let us check. Limit x tends to pi sin 3x upon sin 2x. Okay, what we have to do is, we have formula which is limit x tends to 0 sin x upon x. Okay, but here we have limit x tends to pi. So let us take x minus pi is equals to theta. Okay, this will give us x equals to pi plus theta. So converting it, limit x tends to theta tends to 0 sin 3 x equals to pi plus theta divided by sin 2 times pi plus theta. Okay, which will give us limit theta tends to 0. ये क्या हो जाएगा? sin अंदर 3 pi plus 3 theta divided by sin 2 pi plus 2 theta. हाँ, यहाँ पे हमें अज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो लिमिट टेंस टू 0 के लिए है। जिसने भी नहीं किया है डायरेक्ट लिखा है, तो अगर आप जेडब्ल्यू में कर रहे हैं तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, यू कैन राइट द आंसर। बट जरूरी नहीं है कि हर वक्त सेम ही होगा। अगर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 हुआ ना तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप ये अज्यूम करके ही करो। ओके, सो लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा। अब साइन 3 पाई प्लस 3 थीटा, तो साइन 3 पाई मतलब कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। तो ये 3 पाई है, 3 पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव. ओके, तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब हमें क्या चाहिए? थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके, तो साथ में क्या होगा? 3 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा? लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये 2/3 जो है वो बाहर आ जाएगा एंड वी हैव आंसर माइनस साइन 3 थीटा। ये माइनस भी बाहर ले लेते हैं, तो माइनस 2/3 आंसर होगा, डिवाइड बाय 3 थीटा इनटू 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। सो आंसर इज माइनस 2/3। It is not minus 3 by it is not 3/2.
समझ में आया ना? किसी को डाउट? अच्छा, नंबर 5 5 करो तो लिमिट x टेंस टू 0 3 रेज टू x प्लस 2 रेज टू x माइनस 2 डिवाइड बाय x. आया आंसर? मैम -2 આવે છે -2 नहीं. Anyone else? Limit x tends to 0 a raised to x minus 1 divided by x is equals to 1. ये याद है जी? नहीं, सॉरी 1 नहीं, log a base e याद है? फॉर्मूलाज याद किए सभी ने? अप्लाई करो तो. नाउ टेल मी द आंसर.
आंसर? आंसर? इतना टाइम क्यों लगता है लिमिट्स में? लिमिट x टेंस टू 0, 3 रेज टू x प्लस 2 रेज टू x माइनस 2 डिवाइड बाय x। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू x माइनस 1 प्लस 2 रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x। अब याद करो ये क्या हुआ? लिमिट x टेंस टू 0, 3 रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x। लिमिट की प्रॉपर्टी क्या है? लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x। इसके इक्वल्स टू क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस और माइनस लिमिट x टेंस टू 0 और a ही रखते हैं g ऑफ x। ऐसा होता है तो क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0, 3 रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस लिमिट x टेंस टू 0, 2 रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होगा? 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। एक ही जगह पे हमारे पास 3 है, तो क्या हो जाएगा? log 3 बेस e प्लस ये क्या हो जाएगा? log 2 बेस e। अब log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या होता है? log a इंटू b, राइट? तो विच इज इक्वल टू log 3 इंटू 2 विच इज 6, log 6 बेस e। ये होगा हमारा आंसर। आया समझ में? यस और नो? मैम हाँ, 3 रेज टू x का 3 रेज टू x माइनस 1 kg। 3 रेज टू x છે અહીંયા 2 રેજ ટુ x છે, -2 છે, -2 નો આપણે બે ભાગ પાડ્યા, -1 ओके ओके। ओके। और कोई डाउट? नो मैम कोई डाउट नहीं। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ओके? तो नेक्स्ट लेक्चर में अब आगे करेंगे कंप्लीट।